اب یسوع مسیح کے ببرکت نام میں پاسٹر نذیر مسیح گر کا اور خوشخبری ٹی وی کا آپ کو سلام۔ کلام مقدس میں سے آج میں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 6 آیات پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور کلام مقدس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، پس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار ہے۔ جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا، چنانچہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے۔ موسیٰ تو اسے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، اور اس کا گھر ہم ہیں، بشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ خداوند کے کلام کی پڑھے اور سنے جناب کو خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کے کلام میں سے آج ہم نے یسوع مسیح جو سردار کاہن اور جو رسول ہے اور جو اپنے کام میں کامل دیانتدار ہے، اس کے بارے میں یہاں پڑھتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم نے جو بات آج دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ پس اے پاک بھائیو، یہ بات میں آپ کے لیے بولس رسول کی طرف سے کہتا ہوں، پس اے پاک بھائیو۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم پاک ہیں؟ غور کریں اس بات پر کہ کیا ہم پاک ہیں؟ کیا میں پاک ہوں؟ کیا آپ پاک ہیں؟ کیا ہم پاک ہیں؟ کیونکہ کلام مقدس تو ہمیں پاک کہہ رہا ہے، جن کو لیے یہ کلام مقدس لکھا گیا ہے، ہمیں کلام مقدس پاک کہتا ہے۔ تو یہ کلام مقدس کا ہمیں پاک کہنا ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، آپ اور میں اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، تو کیا ہم پاک ہیں؟ چلیں غور کرتے ہیں اس بات پر۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں 1 باب اور اس کی دوسری آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں کلام مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 1 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھ میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام جو ہر ایک جگہ ہمارے اور اپنے خدا یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، کرنتھیوں کی کلیسیا کو جب خداوند کا بندہ پولس رسول یہ بات لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم یسوع مسیح میں پاک ہونے کے لیے بلائے گئے ہو، اور یسوع مسیح میں مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ عزیزو، جب ہمیں خداوند کا بندہ پولس رسول یہ بات لکھتا ہے کہ پس اے پاک بھائیو، تو مجھے اور آپ کو اس بات کی وہ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ ہم یسوع مسیح میں آ گئے ہیں، اور یسوع مسیح میں آنے سے ہم پاک ہیں۔ اگرچہ کہ کلام مقدس میں رومیو 3 باب کی 23ویں آیت یہ کہتی ہے کہ ہر ایک نے گناہ کیا اور خداوند کے جلال سے محروم ہے، اور رومیو ہی کی کتاب کے 3 باب کی 10 اور 11 دیکھتے ہیں تو لکھا کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ میں پڑھنے لگا ہوں کلام مقدس میں سے وہ بات لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، 10 پڑھ رہا ہوں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں۔ دیکھیں کلام مقدس تو یوں کہتا ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں، یہاں تک کلام مقدس اس بات کا عیاں ہے کہ خداوند کے نبی
खुदावंद के हुजूर गलतियां की, गुनाह किए, लेकिन क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर आते, माफी मांगते, तौबा कर लेते और उसकी बात को कबूल करके उसके काम के लिए आगे बढ़ते, तो खुदावंद उन्हें मुआफ करता। मैं इसके लिए बड़ी मिसालें दे सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही मिसाल पेश करूंगा, और वो है, अगर आप दाऊद को देखें तो वाज़िह तौर पर जब उसने अतीयोरिया की बीवी को ले लिया और अतीयोरिया को मरवा दिया, तो खुदा ने नातन नबी के जरिए से क्या कहा कि ये शख्स तू है, तूने ये गुनाह किया है और तू वाजिबुल कत्ल है। कलाम मुकद्दस ना सिर्फ मुझे और आपको, हम सबको ये कहता है कि हम गुनहगार हैं, इवन के अंबिया भी उससे बच नहीं सके। तो यहां बात ये हुई, यहां हो गई कि जब हम सब गुनहगार हैं तो हम सब के लिए यीशु मसीह को कबूल करके उसमें पाक होना है। यहां जब खास तौर पर क्रंथियों के नाम खत लिखा गया है ना, तो उसे कहता है कि तुम पाक होने के लिए बुलाया गया हो। तो क्रंथियों के लोग कोई इतने अच्छे लोग नहीं थे। जहां पौलुस रसूल ने अपना काम शुरू किया, कलीसिया कायम की, लिखा हुआ है कि वो हर तरह की बदकारी में थे, बदफेली में थे, लूट मार में थे, हर तरह के बुरे काम जो उनमें पाए जाते थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया तो ये बुरे काम उनकी जिंदगी से निकल गए और वो नए शख्स बन गए, वो पाक हो गए, वो मुकद्दस हो गए। और इसलिए कलाम मुकद्दस में हम इब्रानियों के खत में देखते हैं कि मुझे और आपको और इब्रानियों की कलीसिया को खुदावंद का कलाम ये कहता है कि बस ऐ पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, गौर करें बात की कि जब हम यीशु मसीह में पाक किए गए हैं, मुकद्दस किए गए हैं, तो ही हम आसमानी बुलावे में आसमान पर उसके साथ जाएंगे। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो आऊंगा और फिर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी। तो यहां हम देखते हैं कि इब्रानियों के खत में कहता है कि हम जो कबूल करते हैं यीशु मसीह को, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो कि उस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। हम जो उसे कबूल करते हैं, हमें बुलावा है आसमान का कि हम उसके साथ आसमान पर जाएंगे और फिर उसके साथ 1000 साल आसमान पर रहेंगे। जाने क्या है, उस रसूल और सरदार काहन यीशु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। रसूल यानी जो खुदावंद का पैगाम लेकर आता है, सरदार काहन जो हमारी कहानत करता है, मेरे और आपके लिए खुदा के दरमियानी है, खुदा के और हमारे दरमियानी है। इब्रानियों ही की खत के 7:25 में लिखा है, वो जिंदा आसमान पर हमारी शफाअत के लिए। हमें किस पर गौर करना है? यीशु मसीह पर, जिसका हम इकरार करते हैं। हम यीशु मसीह का गौर करना है, हमने उसकी तालीमात का गौर करना है, और क्योंकि वो रसूल कहा गया उसे यहां, तो हमने उसकी तालीमात पर गौर करना है जो उसने हमें दी है, कि हमें मोहब्बत से, प्यार से मुआफ कर देने वाली रूह रखनी है, हमें मिलनसारी से रहना है, हमें हर एक को कबूल करते हुए अपनी जिंदगी सुलह और सलामती से गुजारनी है, हमें रास्तबाजी में जिंदगी गुजारनी है। और जब हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह पर जो सरदार काहिन है, लिखा है गौर करो, उस पर इकरार करो, तो लिखा है वो जो काम खुदा ने उसे दिया था, जैसे यूहन्ना की इंजील में कहता है, मैं कोई काम आप खुद नहीं करता बल्कि वही करता हूं जो बाप ने मुझे करने के लिए भेजा था। कहता है कि उस काम पर वो क्या करता है? दियानतदार। जब हम इस बात को देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में यह बात लिखी है कि हमने यीशु मसीह पर गौर करना है, और वो कौन है यीशु मसीह? लिखा सरदार का है, यीशु पर गौर करें। ये बात मुझे ना बड़ी अच्छी लगती है कि हम यीशु मसीह को सरदार काहिन कहते हैं। इस बात से मुझे एक बात से छुटकारा मिल जाता है कि फिर जमीन पर ना तो काहिन वसी कुर्बानियां करेंगे और ना ही अकल होगी, क्योंकि यीशु मसीह सरदार काहिन जो है वो ना तो लावी के कबीले से हैं कि वो कहानत करें, और ना ही वो लावी के कबीले होते हुए जमीन पर बनाई हुई जो नमूने की
जो कॉपी थी हैकल, उस पर कहानत नहीं करने वाली, क्या बल्कि वो आला चीजों पर जो आसमान की चीजें हैं, आसमानी हैकल है, वहां हमारी कहानत के लिए मौजूद है, जहां इब्रानियों की किताब के 8 बाब में लिखा है। लेकिन मैं आपके साथ किसी वक्त पूरी इब्रानियों की किताब को एक सीरीज के तौर पर पेश करने वाला हूं, और हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से खुदा यीशु मसीह हमारा सरदार कायन आसमान पर होता है। कहता है कि यीशु मसीह पर इकरार करने पर कायम रहो, उस पर ध्यान दो, उसकी तालीम पर तवज्जो करो, और फिर लिखा है उसके तरह ध्यान दो। लिखा आगे यीशु मसीह का मुआजना मूसा के साथ किया गया है। लिखा गया है कि मूसा क्या है, ये देखें, इसकी मैं दूसरी आयत से पढ़ूंगा, आखिरी में लिखा है जिस तरह मूसा उसके घर में था। मूसा को जो काम खुदा ने दिया उसने बड़ी दयानतदारी से किया। खुदा भी बड़ा दयानतदार था। लिखा है क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया, जिस तरह घर का बनाने वाला घर से ज्यादा इज्जतदार होता है। यहां अब कहा गया है कि मूसा ने खुदावंद की कलीसिया को ऑर्गेनाइज किया, लीड किया, उनकी रहनुमाई कराई की, लेकिन उस घर का बनाने वाला कौन है? खुद खुदा है। कलीसिया का सरबराह कौन है? खुद खुदा है। मूसा तो उसका खादम था, नौकर था, जो उसका काम कर रहा था। यानी क्या है, इसलिए यीशु मसीह खुद खुदा होते हुए मूसा से आला है, और जब मूसा से आला है तो वो उस घर का यानी कलीसिया का मालिक है। यहां उसकी 4 आयत में लिखा है ज्यादा इज्जत के लायक है, मालिक है। चनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। 5वीं आयत, मूसा तो उसके सारे घर में खादिम की तरह ध्यानदार रहा, ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे। मूसा ने खुदावंद के कलाम से, खुदावंद के रूह कुद्दुस के वसीला से, जो खुदा उस पर ज़ाहिर करता कि आइंदा होने वाली बातों को ज़ाहिर कर, उसने कहा कि मेरे ही तरह का एक नबी तुम्हारे में आ रहा है। यानी यीशु मसीह के बारे में उसने पेशन गोई हमें पहले से थी। अजीजों, अब यहां जब यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं तो 6ठी आयत ये कहती है, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है। यीशु मसीह मेरा और आपका मुख्तार है, क्योंकि हम उसका घर है। कलाम मुकद्दस में 1 कुरिन्थियों 6 बाब यह कहता है कि हम उसका मकदस है और उसका रूह हम में बसा हुआ है। खुदावंद कहता है कि मैं तुम में आकर रहना चाहता हूं, तुम अपने दिल का दरवाजा खोलो। यानी हम उसका घर हैं और वो हमारा मालिक है, और जब वो हमारा मालिक है, मुख्तार की तरह रहता है, तो कहता है और उसका घर हम हैं, बशर्ते के अपनी दलेरी और उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें। कलाम मुकद्दस मुझे और आपको यह कहता है कि हम पूरी दलेरी के साथ उस ईमान में जो उस पर रखते हैं कायम रहें। हमारा ईमान डावाडोल ना हो, हम लर्जे नहीं, हम घबराएं नहीं, हम मुसीबतों दुखों से अपने ईमान से डावाडोल ना हो जाएं, बल्कि कामल तौर पर ईमान रखें। तो जैसे खुदाम यीशु मसीह ने कहा, तुम जान देने तक वफादार रहो तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। हम दलेरी के साथ, ईमान के साथ, वफादारी के साथ सच्चाई की गवाही दें, सच्चाई की खुशखबरी की गवाही दें जो यीशु मसीह में हमें मिलती है। अजीजों, यहां लिखा हुआ है हमारा फख्र उस पर हो क्योंकि हमारी निजात हुआ है। अगर कोई फख्र करे तो लिखा अपने कामों पर नहीं बल्कि खुदावंद पर और उसके फजल पर फख्र। अजीजों, मुझे और आपको अगर फख्र करना है तो यीशु मसीह पर फख्र करना है। यीशु मसीह जो खुदावंद खुदा है, मुझे और आपको बचाने के लिए आया। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील और उसके 70वें बाब की 3 से 5 आयत में आपके सामने पढ़ने लगा हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और हमेशा की जिंदगी यह है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बराक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और अब ऐ बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता हूं, मुझे अपने साथ
जलाली बना दे। कलाम मुक़द्दस क्या कह रहा है? खुदा यीशु मसीह की ये आखिरी दुआ है बागत समनी में, जो उसने रात को की। तो यहां कहते हैं कि हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए हमेशा की जिंदगी ये है कि हम खुदाए वाहिद बरहक को और यीशु मसीह को, जो उसका बेटा है, जो मेरा और आपका निजात देता है, उसे जाने, उस पर इकरार करते हुए ईमान के साथ कायम रहें, मजबूती से उसके थामे रखें और जाने कि वो मेरे और आपके लिए आज शफात करने के लिए आसमान पर, आसमानी हैकल में जिंदा है और हमारी शफात करते। जब हम दुआएं करते हैं, मिन्नतें करते हैं, दरखास्तें करते हैं, तो वो अपना खून लेकर हमारी शफात करते हैं। और इब्रानियों 9 बाब की 12 में लिखा है, अपना ही खून लेकर वहां हमारे लिए पेश हुआ है। इसलिए कहता है कि मुझे और आपको उसे जानना है जो सरदार कायम है, जो खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए अजीजों, आए हम उस पर गौर करें। फिलिपियों की किताब कुछ यूं कहती है, फिलिपियों की किताब का 3 बाब हमारे सामने वाज़िया करता है। फिलिपियों की किताब के 3 बाब में और उसकी 20 और 21 आयत में आपके सामने पढ़ने लगा हूं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदा यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तस्वीर के मुआफिक, जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। और करें, ठीक है ना, हम क्या करें? कलाम मुक़द्दस में हमने अभी इब्रानियों के खत में पढ़ा है कि हम आसमानी बुलावे में शरीक हैं। तो लेकिन जब आसमानी बुलावे में शरीक हैं तो हमारा वतन कहां है? आसमान पर। यह आरसी है, शायद 70 साल या 80 साल, कुव्वत तो शायद थोड़ी ज्यादा हो जाए हमारी उम्र, लेकिन ये आरजी तौर पर यहां रहना है। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब की पहली 10-9 आयत ये कहती है कि इस घर खेमे का है, गिराया जाने वाला है, लेकिन हमारा अबदी घर खुदाबंद के साथ आसमान पर है। तो हम इसलिए आसमानी बुलावे में बुलाए गए हैं। और इस्लामी, जब हम आसमानी बुलावे में बुलाए गए हैं तो आए हम यीशु मसीह के साथ पुख्ता ईमान में, इकरार में कायम रहें और उसके साथ आसमान पर जाने के लिए तैयार रहें। और जाएंगे तभी अगर हम उसमें पाक रहेंगे। ठीक है, वो हमारे लिए खुदा की पाकीज़गी है। अगर हम उसे कबूल करके और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, नशे से, बुराइयों से, बिदअतों से अपने आप को महफूज रखते हैं। आए दुआ मांगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो आज के कलाम के लिए। खुदावंद तू हमें बरकत दे, रहम व फजल कर। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ कि नाज़रीन को जो तेरे कलाम को सुन रहे और देख रहे हैं, तो बरकत दे, एक एक घराने को बरकत दे। खुदावंद उन पर तेरा रहम हो, उन पर तेरा फजल हो, उन पर तेरी बरकत ठहरे। बीमारियों को, कमजोरियों को, बेऔलादी को खुदावंदा उस घरों से निकाल दे जहां तेरा कलाम खुशखबरी टेलीविजन की वसीला से जाता है। तेरा फजल और बरकत और तेरी रहमत हो। यीशु मसीह के नाम से